Hello friends, welcome back to the channel Yo-Yo Bio, chapter Biotechnology and its application. You see, Bio. Bio ko we call it as Bio. That's the reason why the channel is Yo-Yo Bio. Anyway, quickly let's start with the word biotechnology. Biotechnology involves industrial scale production of biopharmaceuticals. Biopharmaceuticals का meaning is medicines, okay, and bioproducts using genetically modified organisms such as fungus, plants and animals. So इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, फंगस है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ओके, इन सब के जीन्स को हम लोग चेंज करते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से. अब फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स क्या है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है. सो इनके जीन्स को हम लोग चेंज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की मदद से और इनसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनवा के लेते हैं जो हमारे काम आते हैं. यू सी दीज प्रोडक्ट्स, दे आर यूज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड. मूविंग ऑन, नेक्स्ट. Application of biotechnology involves therapeutics. Therapeutics का meaning is a treatment. Diagnostics. Diagnostic का meaning is to detect. Whenever we have any disease like malaria, dengue, typhoid, okay, so we go to diagnostic center. Diagnostic center हमारे disease को detect कर सकता है. And genetically modified crops, processed foods, bioremediation. Remediation means solution, यानी biological solution of any problem, waste treatment and energy production. As such, this is just the introduction definition, but many a times in NEET they have this tendency to ask generalized definitions as well. Okay, so go through these words and revise these sentences again and again. Moving on. 3 critical areas of research involves making the best catalyst in the form of microbe यानी microorganism or enzyme. Second, creating optimal condition. Optimal means the best suitable condition for these catalyst to act. यानी बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं ना, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं या तो एक ऐसा एंजाइम या हार्मोन बनाते हैं जो हमारे काम आता है. जैसे अगर किसी में ग्रोथ हार्मोन की कमी है, सो ग्रोथ हार्मोन को हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं. किसी में समझो इंसुलिन की कमी है, लाइक डायबिटिक्स पेशेंट, ओके, तो हम लोग इंसुलिन बनाते हैं. सो हम लोग कोई ना कोई कैटलिस्ट बनाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में या तो एंजाइम के फॉर्म में, और फिर ऐसे ऑप्टिमल कंडीशंस क्रिएट करेंगे कि वो कैटलिस्ट काम कर सके. एंड थर्ड इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. वेरी इंपॉर्टेंट इन नीट, रिमेंबर, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मींस सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब होता है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, यानी मैं जो भी केमिकल बना रहा हूं फिर उस केमिकल को सेपरेट करना, प्यूरिफाई करना, फिर उसका पैकेजिंग होता है और वो मार्केट में बिकता है. नेक्स्ट, 3 ऑप्शंस फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन. अगर हमको फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमारे पास 3 ऑप्शन है. नंबर 1, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करो, यानी ज्यादा से ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करो, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स. Second, organic agriculture. Organic agriculture deals with lot of carbon compounds, natural compounds. And third, genetically engineered crops. यानी कुछ ऐसे क्रॉप्स का इस्तेमाल करो जिसके जीन्स को हमने मैनिपुलेट किया है, जिसके जीन्स को हमने चेंज किया है और फिर ये क्रॉप हमको ज्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं. The yield of such crops is more. You will come across the word yield. Yield का meaning is production. Moving on, next. Green Revolution was started by Dr. Norman Ernest Borlaug. Dr. Norman Ernest Borlaug, he is called as father of Green Revolution because इसने है ना इस तरह का एक रेवोल्यूशन लाया था, इस तरह का एक पूरा प्रोसेस लाया था जिसके वजह से हम लोग क्रॉप्स का प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं. Green Revolution was responsible for tripling the food production. यानी जितना भी फूड का पैदावार था, जितना भी प्रोडक्टिविटी था, उसको हम लोग ने 3 गुना बढ़ा दिया था with the help of Green Revolution. Moving on, next. Plants, bacteria, fungus and algae whose genes have been altered. Altered मतलब बदल दिया हम लोग ने. That means to change. By manipulation are called as genetically modified organisms. एकदम सिंपल एग्जांपल के हिसाब से चलते हैं. लेट्स से एक काल्पनिक एग्जांपल, स्पाइडरमैन.
हम सब ने ये मूवी देखी है। ओके, अब एक इंसान के जीन में अगर मैं मैनिपुलेट करके स्पाइडर का जीन ऐड कर दूं, अब वो इंसान इंसान नहीं रहा, अब वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि उसके जीन को मैंने मैनिपुलेट करके किसी और के जीन के साथ कंबाइन करवाया। सिमिलरली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोग प्लांट्स का, बैक्टीरिया का, फंगस का और एल्गे का जीन्स हम लोग चेंज कर रहे हैं ताकि वो इंप्रूव्ड वेराइटी बन सके और उनसे हमको फायदा हो सके। नेक्स्ट, अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, इससे अपने को 3 फायदा होगा। फर्स्ट, दीज आर एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट। एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट यानी अगर एक प्लांट का अगर मैंने जीन्स चेंज कर दिया, फिर उस प्लांट पे है ना एक्सट्रीम ठंड, सूखा यानी ड्रॉट, हद से ज्यादा नमक यानी सॉल्ट और हद से ज्यादा गर्मी, सो वातावरण के, एनवायरनमेंट के ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं ना, ये सारे फैक्टर्स का इस क्रॉप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये क्रॉप बुरे से बुरे हालात में भी सरवाइव कर पाएगा। तो ये फायदा होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का। दूसरा फायदा, दिस डिक्रीजेस द रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। रिलायंस यानी डिपेंडेंसी, केमिकल पेस्टिसाइड्स पे डिपेंडेंसी कम करवा देता है। यानी ये हमारे क्रॉप्स को बनाएगा पेस्ट रेजिस्टेंट। पेस्ट रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि हमारे क्रॉप पे किसी भी तरह का इंसेक्ट है, कीड़ा है, वो अट्रैक्ट नहीं होगा, वो हमारे क्रॉप्स को खा नहीं पाएगा। और क्योंकि हमारे क्रॉप्स में अंदरूनी ताकत होगी कि वो इंसेक्ट्स और पेस्ट से लड़ सकता है, इसलिए हमको ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूविंग ऑन, इट हैज आल्सो हेल्प्ड टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। यानी फसल काटने के बाद, पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट मींस आफ्टर, हार्वेस्ट मींस टू कट, फसल काटने के बाद भी जो नुकसान होता है ना, वो इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इट इंक्रीजेस द मिनरल यूजेज एफिशिएंसी। अब एक क्रॉप जब मिट्टी में ग्रो होता है तो मिट्टी से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। ओके, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं ना, मिट्टी से ज्यादा मिनरल्स को एब्जॉर्ब करवाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कि मिनरल का जो यूज है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। और क्योंकि वो एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना, इसीलिए दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। इसलिए है ना, सॉइल में से ज्यादा मिनरल्स बर्बाद नहीं होते और सॉइल्स की फर्टिलिटी लंबे समय तक बनी रहती है। पॉइंट नंबर 5, एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। अगर हम लोग किसी भी प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं ना, तो उसमें जो पोषण है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो न्यूट्रिएंट का वैल्यू भी बढ़ जाता है। इसका वन एग्जांपल यू हैव टू रिमेंबर इज गोल्डन राइस। गोल्डन राइस इज विटामिन ए एनरिच्ड राइस। देखो कितनी कमाल की बात है। अक्सर राइस में है ना सिर्फ स्टार्च नाम का न्यूट्रिएंट होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पर हमने क्या किया ना, राइस का जीन्स मैनिपुलेट किया और उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी एक नया किस्म का राइस बनाया, जिसमें नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स तो होगा ही, पर उसके साथ साथ विटामिन ए भी है। इसलिए इसको बोलते हैं विटामिन ए एनरिच्ड राइस और इसका नाम रखा है गोल्डन राइस। अब विटामिन ए की कमी की वजह से ना नाइट ब्लाइंडनेस होता है। सो हर वो गांव जहां पर लोगों को बहुत ज्यादा नाइट ब्लाइंडनेस है, वहां पर अगर हम लोग विटामिन ए प्रोवाइड नहीं कर सकते, कैरेट प्रोवाइड नहीं कर सकते, कैरेट के अंदर विटामिन ए होता है, सो एटलीस्ट हम लोग वहां पर ये इंप्रूव्ड राइस का वेराइटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जहां जाने अनजाने में लोगों को पता भी नहीं रहेगा, पर उनको विटामिन ए भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, अब लास्ट टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया सब जनरल टॉपिक था। सो नाउ मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, देयर इज दिस ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis शॉर्ट फॉर्म में उसको बीटी लिखते हैं। ये ना एक बैक्टीरिया का नाम है और दिस बैक्टीरिया हैज गॉट अ जीन व्हिच प्रोड्यूसेस बीटी टॉक्सिन। यानी इस बैक्टीरिया के पास एक ऐसा जीन है, ओके, जो टॉक्सिन, पॉइजन बनाता है। और ये पॉइजन क्या करता है ना, इंसेक्ट्स को, पेस्ट को, कीड़े मकोड़ों को मार सकता है। तो अब हमने क्या किया ना, सी द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के मदद से इस बैक्टीरिया के टॉक्सिन वाले जीन को निकाला और प्लांट्स में जोड़ दिया। कौन से प्लांट्स में हमने बैसिलस thuringiensis का जीन जोड़ दिया है, उसका एग्जांपल सीसी। देखो
रुपीज पैसा खर्चा करना पड़ेगा टोमेटो और पोटैटो खरीदने के लिए, दिस विल बी अवर टेक्निक। सीसी देखो देखो, रुपीज पैसा खर्चा करो फॉर बाइंग टोमेटोज एंड पोटैटोज। एग्जाम्पल सीसी, पहला सी कॉटन, दूसरा सी कॉर्न, मकई आता है ना, भुट्टा, ओके राइट। देन आर फॉर राइस, एस फॉर सोयाबीन, देन कम्स टोमेटो एंड पोटैटो। यानी ये सारे क्रॉप्स में हमने क्या किया ना, ये बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis इसके जीन को हमने इन क्रॉप्स में डाल दिया। तो इसके वजह से ये क्रॉप्स के अंदर भी वो टॉक्सिन बनने लगता है, जिसके वजह से इंसेक्ट और पेस्ट इन क्रॉप्स को अटैक नहीं कर सकते। लेट्स सी, अब यहां देखो ध्यान से। सो ये प्लांट्स पे अब कौन से इंसेक्ट और पेस्ट अटैक नहीं कर सकते? 3 कैटेगरी के इंसेक्ट्स। शॉर्टकट याद रखने का, एलसीडी। एलसीडी टीवी आता है ना वैसा। एल से लेपिडोप्टेरेंस, सी से कोलियोप्टेरेंस और डी से डायप्टेरेंस। वापस से एलसीडी, लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस, डायप्टेरेंस। लेपिडोप्टेरेंस में कौन से कीड़े को ये वाला टॉक्सिन मार सकता है? इट कैन किल टोबैको बड वर्म्स एंड आर्मी वर्म्स। कोलियोप्टेरेंस में रिमेंबर बीटल्स और डायप्टेरेंस में रिमेंबर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। नाउ लेट्स क्विकली कम बैक टू द स्टोरी वंस अगेन। देखो ये कहानी एक बैक्टीरिया की है, बैसिलस thuringiensis उसका नाम है, बड़ा नाम है। यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऐसे ही होते हैं, नाम बड़े दर्शन छोटे। ओके, वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म। एक बैक्टीरिया का नाम बैसिलस thuringiensis, उसके अंदर एक ऐसा जीन है जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और वो कीड़ों को मार सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बैक्टीरिया के जीन को निकाल के प्लांट्स में डाल देते हैं। कौन से प्लांट्स? कॉटन, कॉर्न, राइस, सोयाबीन, टोमेटो, पोटैटो, इसमें डाल दिया। इसके वजह से ये सारे क्रॉप्स इन 3 कीड़ों के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम है। यानी ये 3 कैटेगरी के कीड़े अब इस प्लांट्स को अटैक नहीं कर सकते। शॉर्टकट एलसीडी, लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस, डायप्टेरेंस। लेपिडोप्टेरेंस में आता है टोबैको बर्डवर्म एंड आर्मी वर्म, कोलियोप्टेरेंस में बीटल्स और डायप्टेरेंस में आता है फ्लाइज एंड मॉस्किटोस। चलो मूविंग टू लास्ट पॉइंट। अब इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि ये बैक्टीरिया इनएक्टिव प्रोटीन्स बनाता है और ये इनएक्टिव प्रोटीन्स जो है ना उसको बोलते हैं इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। ओके, अब समझो एक कॉटन है, उस कॉटन के जीन के साथ साथ मैंने ये बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis का जीन डाल दिया। तो अगर कोई इंसेक्ट आके इस कॉटन के प्लांट को खाता है, सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज कि उस इंसेक्ट के बॉडी में ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन जाएगा और उसके पेट में, पेट यानी गट, ओके, उसके पेट में अल्कलाइन पीएच के प्रेजेंस में ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव टॉक्सिन में। सो अल्टीमेटली एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और इंसेक्ट के बॉडी में जब ये एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो इसके वजह से इंसेक्ट के बॉडी में स्वेलिंग और लाइसिस होता है, जिसके वजह से इंसेक्ट का डेथ हो जाता है। अच्छा, अब यहां पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये याद रखना कि ये जो टॉक्सिन है दिस विल एक्ट ऑन एपिथेलियल सेल्स ऑफ द मिडगट। देखो इसका कहानी एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। समझो फॉर एग्जांपल एक कॉटन है, ओके, ये कॉटन का लीफ। अब इस कॉटन के जीन में मैंने बैसिलस thuringiensis का जीन भी डाल के रखा है। सो इस लीफ के हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर, उसके डीएनए के अंदर बीटी का भी जीन है, बैसिलस thuringiensis का भी जीन है। अब कोई इंसेक्ट या वर्म आके समझो लीफ खाता है, तो उस इंसेक्ट के बॉडी में इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव टॉक्सिन में, क्योंकि इंसेक्ट के गट में, उसके इंटेस्टाइन्स में, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, ओके, क्या होता है ना, अल्कलाइन पीएच में ये इनएक्टिव एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसके वजह से इंसेक्ट का डेथ हो जाता है। फिर ये इंसेक्ट्स इस तरह के प्लांट्स को खाना छोड़ देते हैं। चलो लास्ट 2 एमसीक्यू। क्राई1 एबी जीन कॉर्न बोरर को रोक सकता है और क्राई1 एसी और क्राई2 एबी जीन कॉटन बॉलवर्म्स को रोक सकता है।
अब बात यह है कि बैसिलस thuringiensis, इस बैक्टीरिया से ये जो जीन मिल रहा है ना हमको, जिसके वजह से ये टॉक्सिन बनता है, इस जीन का नाम ही रख दिया गया है क्राई जीन। ये मान के चलो ऑन अ जनरलाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू कि ये इंसेक्ट्स को रुलाता है। अब ये क्राई जीन के देखो 3 टाइप लिखे हैं, इसमें से क्राई 1 AB वाला जीन है ना, कॉर्न बोरर नाम के कीड़े को रोक सकता है, और क्राई 1 AC और क्राई 2 AB वाला जीन कॉटन बॉलवर्म्स को रोक सकता है। अब इसके लिए लास्ट ट्रिक हम लोग ऐसे याद रखेंगे, कौन बोर हो रहा है, अब वो एक बार रोएगा। ओके, कौन बोर हो रहा है, अब वो एक बार रोएगा। रोएगा यानी क्राई। सो नाउ यू कैन रिमेंबर, कौन बोरर अगर एमसीक्यू पूछा ना, ओके, यानी कौन बोर हो रहा है, तो अब वो एक बार रोएगा। अब बाकी बचे दोनों भी जीन, ओके, दैट इज क्राई 2 AB और क्राई 1 AC, दैट इज फॉर कॉटन बॉलवर्म्स। So friends, that's all for today's lecture. Do not forget to like, comment and subscribe. Okay? And read bio, bleed bio, yo-yo, ba, yo. Thank you.